Hello students, I am Nisha Katoj from Diet Kangra at Dharamshala and I am taking up your mathematics education DLED second year, and my today's topic is how to use unknowns during the process of generalization. So you have studied this topic in the previous video. So this video is in continuation to the previous video, and I'm uh, today begin with the topic, that is how to use unknowns. You can see number patterns that help in appreciating the use of unknowns in expressing the generalization resulting from pattern, and this is part 2. So in today's topic part 2, we will discuss how the numbers that we study can be graphically represented. So let's see, to begin with the numbers. I have taken number 1. So its graphical presentation is, you can represent 1 like this by any dot or by any object. Then next comes the number 3. And the number 3, you can see we can represent like this 1 and then 3. And which shape this number is giving us? This is triangular shape. और हम कहेंगे ये समबाहु त्रिभुज की शेप है, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है. उसी तरह से अब हमें ऐसी ही नंबर्स को लेना है नेक्स्ट, जो ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं. तो आप देखें कि जब 1 था, नेक्स्ट नंबर लिया तो 1 एज इट इज रहा, उसके नीचे एक और ऐड करके 1 + 1 2 ऐड कर दिया. अब यहाँ 2 है, इट मींस नेक्स्ट नंबर में 3 लाइंस 3 डॉट ऐड करनी पड़ेंगी. देखिए 1 2 एज इट इज then 1 2 and 3. So this is giving you number 6, and again the shape is triangular, या हम कहेंगे equilateral triangle की शेप है. उसी तरह यहाँ 3 था लास्ट, तो नेक्स्ट में 4 ऐड करना पड़ेगा, पीछे वाला पैटर्न रेपिटेशन, एंड देन we'll add 4 more objects and we'll place the objects like this, and this is giving you the triangular shape. Similarly, now there is 4 objects, in the next we'll add 5, and you are again getting a equilateral triangle or Sambahu Tribhuj, and the number 15 is representing this equilateral triangle. And again we have number 21. So in mathematics, the different numbers can be represented graphically in different shapes, and on the basis of shapes we give them the name accordingly, right? 1 3 6 10 15 20 21. क्योंकि ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है जब हमने इनको ग्राफिकली प्रेजेंट किया है इन नंबर्स को, तो इसलिए हम इनको ट्रायंगुलर नंबर्स या त्रिक संख्याएं भी कहते हैं. तो ट्रायंगुलर नंबर्स, the triangular numbers sequence is the representation of the numbers in the form of equilateral triangle. तो क्या है त्रिक संख्याएं? इसमें हम नंबर्स को, यू कैन सी नंबर्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में एक्सप्रेस करते हैं. तो इसीलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? त्रिक संख्याएं, जिनका ग्राफिक प्रेजेंटेशन ट्रायंगुलर शेप में हो. यहाँ वंस अगेन यू कैन सी दिस नंबर इज 1. तो अब हमने देख लिया कैसे इन संख्याओं को हम ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि 1 है तो हम इसको फर्स्ट टर्म कह देते हैं, दैट इज 1. सेकंड टर्म 3. अब ये वही नंबर हैं लेकिन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे 6 है तो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. So this then term T5, which is 15. This is the arrangement. T6. So now I'm taking a first 6 triangular numbers. So आपने देखा कैसे उनको graphically हमने present किया. तो ये थे 1 3 6 10 15 21. So students, now
think what will be the next two numbers in this sequence. So let's first observe. So why earlier I said this video is in continuation to the previous one, because आपने देखा पिछले में हमने सीक्वेंस को इंडक्टिव रीजनिंग लगा के जनरलाइजेशन की थी, तो वही अब हम यहाँ यूज करेंगे. दिस इज द सीक्वेंस, दिस आर द स्पेसिफिक एग्जांपल्स. अब हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 के बाद 3 आ रहा है, इट मींस 2 ऐड किया. 3 के बाद 6 आ रहा है, देन वी एडेड 3 टू द नंबर 3. फिर 6 के बाद नंबर 10 है तो 4 ऐड किया. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, पहले 2 के एडिशन है, फिर 3 की है, फिर 4 की है, देन 5 की है, तो 15 आ रहा है. 6 की है 21. इट मींस 21 के नेक्स्ट 7 की एडिशन है, देन विल गेट 28. 28 के बाद 8 की एडिशन होगी 36, एंड इन दिस वे द सीक्वेंस विल गो ऑन एंड ऑन. हमने अभी देखा कि जो फर्स्ट टर्म थी T1 से रिप्रेजेंट किया वो 1 है. सेकेंड टर्म ट्रायंगुलर नंबर की सेकेंड टर्म T2 3 थी. अब हम इसको अननोन यूज करेंगे. अभी तक तो हमने जस्ट पैटर्न ऑब्जर्वेशन करके यही जाना कि नेक्स्ट नंबर, हाउ वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अननोन यूज करके कैसे सामान्यीकरण करते हैं हम ऑब्जर्वेशन के बाद. तो T2 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये कैसे बनेगा, हमने कहा अगर 1 + 2 को ऐड करें विल गेट 3. थर्ड टर्म है 6 है हमारे पास थर्ड टर्म. ये हमें खुद इस पे वर्कआउट करना पड़ता है कैसे बन रहे हैं नंबर. अगर 1 + 2 + 3 करें, ये मैं आपको पीछे फिर से बताती हूँ. ये देखिए यहाँ से लेते हैं हम 1 + 2 + 3. 1 + 2 + 3 गिविंग यू 6. सो यू कैन सी T4 है, 10 है. अब जब नंबर पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया था 10 कैसे आ रहा था, 1 + 2 + 3 + 4. दिस इज गोइंग ऑन. और यहाँ देखिए अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे लास्ट आपके पास जो नंबर है दैट इज 4. व्हेन वी आर गेटिंग फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं तो यू कैन सी 1 + 2 + 3. अब आपको पता चल गया, बस नेक्स्ट नंबर ऐड करना है. 15 आ रहा है. सिक्स्थ टर्म है T6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 नेचुरल नंबर सारे ऐड करें, आपको 21 मिलेगा. तो पहले तो आपने ये जाना कि नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा. अब ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब 3 था तो 1 और 2 ऐड किए, 6 है तो 1 2 3 ऐड किए. ट्राइंगल को देख के हमने देखा. वन मोर ऑब्जर्वेशन की जब सिक्स टर्म है तो लास्ट नंबर भी 6 ही ऐड हो रहे हैं. फिफ्थ टर्म है तो लास्ट नंबर. तो अब हम अननोन यूज करेंगे, इसको जर्नलाइज करेंगे यूजिंग द अननोन. और वो हम कैसे करते हैं कि हम अब nth टर्म निकालेंगे T1 से Tn. अगर nth टर्म यहाँ लिए, इसका मतलब लास्ट टर्म जो है इसकी n आएगी. जैसे यहाँ देख रहे थे कि 6 था तो लास्ट 6 आ रहा था. nth टर्म है तो हमें मालूम है लास्ट n आएगी और फर्स्ट 1 से स्टार्ट हो रहा था, और उसमें 1 1 की एडिशन है. तो आप देख सकते हैं n है तो पीछे की टर्म 1 माइनस करके आ रही है, n-1. इसमें 1 माइनस करेंगे, n-2. और ये आपने पहले पढ़ा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n ये हैं नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n तक, और इनका योग निकाला है. तो ये फॉर्मूला हमें आता है पहले से ही. ये जो है 1 से n तक, ये क्या है, अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. और इसका फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है n+1/2. तो अब हमने ये जर्नलाइज कर लिया कि अगर ट्रायंगुलर नंबर हैं तो वो इस फॉर्मूला से वी कैन फाइंड आउट n+1/2. So here you see this is the nth term. ये हमने जर्नलाइज कर लिया using the unknown because n आपका वेरी कर रहा है. तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो विल पुट n1. T1 बनेगा 1 + 1 that will give you 1. Then again T2, then we will use 2 in place of n. 2 + 1 divided by that will give you 3. So this is the process of generalization. पहले आपके पास सीक्वेंस आई, you observe the pattern, आपने कॉमनैलिटी ढूंढी, उस कॉमनैलिटी के बेस पे नेक्स्ट नंबर्स फाइंड आउट किए. फिर ये नंबर्स जो सीक्वेंस बनी है ये कैसे बनी है, ट्रायंगुलर शेप देख के हमने ये सीक्वेंस जाना, और उसके बाद हमने अननोन यूज करके फॉर्मूला ही फाइंड आउट कर लिया. दिस इज द फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर्स. अगर आपको कोई कहता है आप 10 नंबर पे कौन सा ट्रायंगुलर नंबर आएगा निकालो, तो यू विल पुट T10, 10 × 10 + 1, तो यू विल गेट 55. तो दिस वे आपसे जितने मर्जी भी ट्रायंगुलर नंबर आप लिख सकते हैं.
अब देखो मैथमेटिक्स में क्या रहता है कि पहले हम कह रहे हैं एज ए टीचर आपको ये इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि बच्चों को जर्नलाइजेशन क्यों सिखानी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास फॉर्मूला या डेफिनेशन निकल के आती है। और जब हमने, अब देखो कोई कहेगा ट्रायंगुलर नंबर, अगर वो बिना देखे उसने शेप नहीं देखी है, कैसे हम अरेंज करते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं जाना है तो वो इन प्रॉपर्टीज जो भी हम करेंगे ये जानने में बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, वो रट लेते हैं और वहीं पे मैथ्स समझ से परे हो जाता है। जैसे आजकल नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मैथ्स में कहा है मैथमेटिकल थिंकिंग। तो गणितीय सोच किसे कहते हैं? गणितीय सोच वो सोच की हमारी सोच बेस्ड है on reasoning, on logic, on facts, on observation, on imagination। तो जब ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में हम सिखाते हैं तब हम कहते हैं कि बच्चे की सोच गणितीय हो गई है। लेकिन ये सब चीजें सिखाने में अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं तो वो ये सारी उनकी जो डेवलपमेंट है, आप कहें कि रीजनिंग की या लॉजिक की या ऑब्जर्वेशन, ये नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए ये जर्नलाइजेशन करना, फॉर्मूले कैसे बने वो सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखिए, वन मोर जनरलाइजेशन इज गिवन तो विल प्रूव इट। अब हम डिडक्टिवली कर रहे हैं, जनरलाइजेशन पहले ही हमें मालूम है, अब हम देखेंगे इसको। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर। आपने देख लिया ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से थे। अब हमने बताना है कि दो क्रमागत अगर त्रिक संख्याओं को योग करें तो हमारे पास वर्ग संख्या आती है। कैसे? लेट्स सी, हियर यू कैन सी। हमने बोला दो क्रमागत त्रिक संख्याओं का योग, एक क्रमागत है, पहली 1 देन 3, योग किया तो 4 आया। अब इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखेंगे स्क्वायर का। 4 है, यू कैन राइट लाइक दिस। मैंने ऐसे ही प्रेजेंट किया है इसको। ये देखिए एक स्क्वायर बन गया है आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर प्रेजेंटेशन है। और इसमें हम एक बात बताऊं, ये जो इस तरह से रहती है आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट रो है यहाँ से यहाँ, ये सेकंड रो है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स। तो ये रोज थी 1 रो 2 रो, 2 रो इंटू 2 कॉलम। तो आपके पास ये आगे 2 इंटू 2, 2 रोज थी, 2 कॉलम्स थी, और ईच रो और कॉलम में ऑब्जेक्ट भी 2 ही है। नेक्स्ट, अब इसमें बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि क्रमागत त्रिक संख्याएं जो एक के बाद इमीडिएट नेक्स्ट है, ऐसे नहीं कोई एक त्रिक संख्या उठाई फिर कोई और उठा ली उनका प्लस कर, नो। द फोकस पॉइंट इज दो क्रमागत त्रिक संख्याओं का योग, एक के इमीडिएट बाद वाली या एक के इमीडिएट पहले वाली। अब नेक्स्ट अगर 3 ले रहे हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट 6 है, 9 बना। तो आप देखेंगे 3 रोज, 1 2 3, 3 रोज बन गई, 3 कॉलम्स बन गए, 1 2 एंड 3। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं रोज इनटू कॉलम, दैट विल गिव यू कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9। तो ये देखिए शेप भी आपके पास क्या है, वर्ग की बनेगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर। तो ये हमने ट्रायंगुलर नंबर। और आप देखो इसको अगर डायगोनल यहाँ से कट कर दें तो विल गेट 2 ट्रायंगल्स। सिमिलरली नेक्स्ट 6 प्लस 10 लिया, 16 आया। तो आई हैव अरेंज तो 4 रोज 4 कॉलम्स, 4 इंटू 4, and in each column there are 4 objects, in each row there are 4 objects। और नेक्स्ट इसी के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि आपने कुछ बच्चों को अरेंज करना है मॉर्निंग असेंबली में, और आपके पास जितनी रोज हैं हर रो में उतने ही बच्चे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कितनी रोज हैं देखो, 1 2 3 एंड 4, तो हर में 4। तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो हमें नंबर दे रखा होता है कि 390 स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे करेंगे, कितने लेफ्ट आउट रह जाएंगे। तो वो सब यहाँ से अगर बच्चों ने सीखा है, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। अब वो विजुअल कर रहे, देख रहे हैं कि स्क्वायर नंबर्स की ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऐसी रहती है। इसमें ऐसे नहीं होगा कि मैंने एक यहाँ पे अगर सर्कल लगा दिया तो वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं रहा। सो नाउ वी हैव प्रूव्ड द प्रॉपर्टी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर नंबर इज लाइक दिस। एंड ट्रायंगुलर नंबर्स लिए हैं, एक बार फिर से फोकस कर रही हूँ, क्रमागत लेने हैं, अगर 1 लिया तो नेक्स्ट 3 लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 3 लिया और नेक्स्ट 10 ले लिया, तो वो आपका जो सम है वो नहीं आएगा स्क्वायर नंबर। क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं ट्रिक।
एक जनरलाइजेशन आपने प्रूव कर दी, विजुअल्स भी देख लिए कैसे स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी को अब हम थोड़ा और जनरलाइज करना सीखते हैं। वो तो जब आपने देखा दैट वाज ग्राफिक प्रेजेंटेशन कि हाउ विल ऐड टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स टू गेट अ स्क्वायर नंबर। अब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे फर्दर। तो बच्चे ये जनरलाइजेशन तभी सीखते हैं अगर विजुअल करवाया है, विजुअलाइजेशन करवाई है आपने पहले ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए 1+3 3+, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे प्रीवियस स्लाइड में, टी एन मैंने निकाला था नेक्स्ट टर्म। तो मैंने क्या किया, क्रमागत मतलब अगर पहली टी एन लिए तो मैंने कहा था नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेनी है, तो उसको हम टर्म n+1 कहते हैं। ये नंबर नहीं है, दिस इज टर्म, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि 9 के बाद 16 नंबर है, नो, टर्म, दिस इज nth टर्म, तो इसकी अगली आएगी n+1। तो टी एन का फॉर्मूला आपने किया था n+1/2। तो n+1 है अगर, तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय n+1, यहाँ n+2, और इस सारे को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया n+1 का होल स्क्वायर। तो अगेन टू इक्वल फैक्टर्स बन गए, n+1 इंटू n+1। तो स्क्वायर नंबर्स का तो रहता ही है कि जब टू इक्वल फैक्टर्स बनेंगे किसी भी नंबर के, देन दैट इज अ वर्ग संख्या होती है। वो तो हमने प्रूव कर दिया कि दो क्रमागत त्रिक संख्याओं का योग जो है आपके पास स्क्वायर नंबर होता है। तो ये हमारा पास जर्नलाइजेशन हमने करके प्रूव कर दिया। पहले हमने ग्राफिक प्रेजेंटेशन से बताया कि कैसे प्रेजेंट करते हैं हम। अब देखिए इसी के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट ईच ऑफ द नंबर्स इन द स्पेसेस बिलो यूजिंग ईच नंबर ओनली वंस टू मेक ऑल द स्टेटमेंट्स ट्रू। एक नंबर को एक ही बार यूज करना है, वो आपको देखना है। जैसे इज अ स्क्वायर नंबर, तो अब स्क्वायर नंबर अभी देखा टू इक्वल फैक्टर्स, तो मेरे को पता है 81 के होते हैं 9 इंटू 9, तो यहाँ आ गया 81 इज अ स्क्वायर नंबर। प्राइम नंबर हमने पिछली वीडियोस में देखा था जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। तो वो मुझे अभी तो मुझे मालूम है, आपने पहली वीडियो में देखा, करके देखना 83 83 1 to 100 प्राइम नंबर्स आपको याद ही होने चाहिए कौन से रहते हैं। तो 83 इज अ प्राइम नंबर, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड 83। अब नंबर ढूंढना इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, जो 5 का मल्टीपल है या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या 5। तो इनमें से अभी कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें एक नंबर लेना है, तो बाकी करके देखते हैं पहले। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, कौन सा नंबर है इनमें? तो मुझे लगता है 85। 85 17 इंटू 5, 5 भी प्राइम है 17 भी, तो 85 तो यहाँ चला गया, इट मीन्स यहाँ 80 आ जाएगा। इज अ डबल, इज डबल अ प्राइम नंबर, दैट इज 82। 41 इज अ प्राइम नंबर, उसका डबल 82 इधर आ गया। इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 वो नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और हमने प्रीवियस वीडियो में किया था 3 से डिवाइड वो होते हैं जिनके अंकों का योग आपके पास 3 से डिविजिबल होता है। एक आपकी पॉसिबिलिटी है ये 8+4 12, और एक है ये 81, तो ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है, देन 84। सो जब आपने विजुअलाइज की है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखी है, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर करना इजी हो जाता है कि आपको पता है स्क्वायर नंबर है तो टू इक्वल फैक्टर्स, प्राइम नंबर है तो ओनली टू फैक्टर्स, 5 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 0 या 5 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम है तो आपको 1 to 100 याद होंगे तो इजी रहेगा। प्राइम नंबर का डबल 1 to 100 याद है तो एकदम दिख जाता है, 41 का डबल इज 82। मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 से डिवाइड होगा। एक और पैटर्न है, सम नंबर्स इन द पैटर्न ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, वही स्क्वायर नंबर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर जिनके टू इक्वल फैक्टर्स बनेंगे, 36 6 इंटू 6 एंड देन 1 1 इंटू 1। तो आप एक 1 की इसमें 1 देख रहे होंगे, स्क्वायर नंबर भी है 1, यू कैन राइट 1 इंटू 1। त्रिक संख्या भी है 1, क्योंकि उसको हम ग्राफिकली आपको दिखता नहीं है ट्रायंगल, लेकिन जब सीक्वेंस देखते हैं तो जब पीछे सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं तो 1 आ जाता है हमारे पास। तो 1 एक घन संख्या भी है, बिकॉज यू कैन राइट 1 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 जो है, इसी तरह स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर नंबर्स भी रहते हैं हमारे पास, तो जिनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड। आप देखिए 2 है पहला आपके पास, उसके बाद आपके पास आ गया है यहाँ पे 6। तो रेक्टेंगल शेप दिख रही है आपको, रेक्टेंगल शेप है। अगले में आपके पास ये वाली अगेन रेक्टेंगल है। आपने ग्राफिक प्रेजेंटेशन स्क्वायर की भी देखी, उसमें जितनी रोज थी उतने कॉलम्स थे, यहाँ ऐसा नहीं है।
देखिए यहाँ रो है 1, कॉलम है 2, 1 एंड 2। तो इसका जो है फॉर्मूला भी हम बनाएंगे। यहाँ देखिए रोज कितनी है, 1 2, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, ये 1, ये 2, ये 3, 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के लिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर रोज 2 हैं तो कॉलम 3 होने चाहिए। तो इसी बेस पे आपका फॉर्मूला बन गया n इंटू एन प्लस 1। अगर आपने 1 रो ली है तो कॉलम 2 ले लीजिए, तब तभी ओनली तभी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के लिए ये फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के लिए ये फॉर्मूला है, स्क्वायर के लिए है n इंटू एन, 2 इक्वल फैक्टर्स। तो मैथमेटिक्स में जितनी ये संख्याएं हैं उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, और उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे रेक्टेंगुलर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, फिर क्यूबिक नंबर्स हैं जिनके 3 इक्वल फैक्टर्स आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज, और जो नंबर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं हम उनको वही नाम दे देते हैं। तो यू कैन सी रेक्टेंगुलर नंबर्स हैं 0 2 6 12 20 30। तो आपने अरेंजमेंट्स करके देखने। नेक्स्ट ये मैंने आपके लिए इसलिए लिया है प्राइम नंबर्स की ग्राफिक प्रेजेंटेशन। देखिए जो प्राइम नंबर्स है ना, हमने कहा था वही होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड रहते हैं। तो उनको जब आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप या तो रो में रख सकते हो या कॉलम में रख सकते हो। ना तो उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनता है, ना ट्रायंगुलर बन जाता है कभी कभी, ना तो स्क्वायर बनता है। तो डिफरेंट देखिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में यू कैन ऑलवेज, आपको रो या कॉलम में 2 है, या तो ऐसे रख लो आप, या इसको ऐसे रख लो 1 कॉलम में, या यहाँ पे क्या है 1 रो 2 कॉलम में। तो 1 इंटू 2 इसके फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पे हमने कहा था रो इंटू कॉलम रहते हैं। 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो इसको या तो आप ऐसे ग्राफिक प्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे। अगर आप बोले अब मुझे इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ आएगा तो नहीं, ट्रायंगुलर पॉसिबल है। 5th है, तो आप देखिए ऑलवेज आप रो या कॉलम में रख सकते हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की, अगर आप इसका बनाएंगे रेक्टेंगुलर तो एक जगह खाली रहेगी तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये 2 तरह के ही बनते हैं। और फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि रो 1 1, कॉलम्स 5 1 2 3 4 5। तो फैक्टर्स इसके यहाँ पे बनेंगे 1 इंटू 5, ओनली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स के क्या रहते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, एक नंबर 1 एंड एक नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा कोई भी संख्या इनको भाग नहीं करती है, इसलिए हम कहते हैं इनके 2 ही फैक्टर्स। तो इसको देखते हुए इनको प्राइम नंबर्स नाम दे दिया गया। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम डिफरेंट नंबर्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करना बताएं, ताकि जब वो नेक्स्ट हायर लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जब ये आपने विजुअलाइज कराए हैं, विजुअलाइज मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स करे हैं और दिखाए हैं, तो दे कैन इमेजिन। तो हमने कहा मैथमेटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब पहले विजुअलाइज कराओ मैथ्स में, क्योंकि इमेजिनेशन आपको बहुत करनी पड़ती है मैथ्स में। तो अगर विजुअलाइज नहीं किया है उन्होंने, ग्राफिक प्रेजेंटेशन खुद नहीं बनाई है नंबर्स की, तो विजुअलाइज नहीं किया है तो इमेजिनेशन तो कर ही नहीं सकते, और फिर रटना पड़ जाता है मैथ्स। तो 7 का आप खुद देखना ना, क्या क्या इसके अरेंजमेंट बन सकते हैं। ये रो या कॉलम में ही लिखा जाएगा, ट्रायंगुलर कभी बनता है इनमें, कभी नहीं बनता है। तो आपने देखा कैसे डिफरेंट नंबर्स को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप सोचें कि ये क्यों सिखाएं, इसलिए सिखाएं ताकि बच्चे प्रोसेस को समझ के, जो क्वेश्चंस में जब घुमावदार क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस हैं, वो तभी कर सकते हैं जब इस टाइप को उन्होंने पढ़ना सीखा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के एपिसोड में हमने कंक्लूड किया है पिछले वाले टॉपिक को भी, कि हाउ टू यूज अननोन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन, या हम कहें कि अंक गणित को हम फिर बीज गणित में शिफ्ट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो आपका बीज गणित है दैट इज सामान्यीकृत अंक गणित है, यानी एल्जेब्रा इज अ जनरलाइज्ड रिथमेटिक। रिथमेटिक के जितने भी पैटर्न ऑब्जर्वेशन थे उनको अननोन यूज करके हम यहाँ तक लेके आए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। जो हमारा आज तक का सिलेबस था वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ द टॉपिक इज हैज कम टू एन एंड। सो